شادی کے بعد میں اپنے شوہر کے ساتھ کرائے کے مکان میں رہتی تھی۔ روزانہ آدھی رات کو میری آنکھ کھل جاتی، مجھے اپنے کمرے میں سے 4 لڑکیوں کے رونے کی آواز آتی جو روتے ہوئے میرے شوہر سے معافی مانگ رہی ہوتی کہ ہمیں معاف کر دو، اب ہم ایسی غلطی نہیں کریں گے۔ میں لڑکیوں کی آواز سے ڈر جاتی اور جلدی سے کمرے کی لائٹ آن کرتی، مگر کمرے میں کوئی لڑکی نہ ہوتی اور شوہر پاس میں سویا پڑا ہوتا۔ میں اپنا وہم سمجھ کر سو جاتی، مگر اب یہ روز ہونے لگا تھا۔ ایک روز لائٹ جلا کر شوہر کے اوپر سے چادر کھینچی تو میری جان نکل گئی، کیونکہ وہ چاروں لڑکیاں تو میرا نام سونیا ہے۔ میری بہت خواہش تھی کہ میں پڑھوں لکھوں اور کسی اچھی جگہ ملازمت کر سکوں، مگر ابا کہتے کہ وہ کبھی بھی مجھے جاب کرنے کی اجازت نہیں دیں گے، اگر کرنی ہے تو شادی کے بعد سسرال جا کر کرنا۔ میں اپنے بھائی کا ہاتھ پٹانا چاہتی تھی جو ہمارے لیے دن رات ذلیل ہوتا، گھر کا سارا بوجھ انہی کے کندھوں پر تھا۔ اس کی شادی کی عمر ہو چکی تھی، پر وہ کہتا کہ اسے ابھی شادی نہیں کرنی۔ میں بھی یہ جانتی تھی کہ کوئی ہے جو بھائی کے انتظار میں ہر رشتے کو ٹھکرا رہی ہے، اور بھائی ہم سب کی وجہ سے چپ ہے۔ بھائی کہتا تھا کہ اس پر ذمہ داریوں کا بوجھ بہت زیادہ ہے، اگر شادی کر لی تو مزید ذمہ داریاں بڑھ جائیں گی اور وہ بیلنس نہیں رکھ پائیں گے۔ دادی کئی بار ابا سے کہہ چکی تھی کہ بیٹا جوان ہو گیا ہے، یہی عمر ہوتی ہے شادی کی، اگر اولاد کی جلدی شادی کر دیں تو میاں بیوی ایک دوسرے کو اچھے سے سمجھ جاتے ہیں۔ تب ابا کہتے کہ ماں جی آپ کی بات صحیح ہے، پر اب وہ وقت نہیں رہا جب بچوں کی جلدی شادی کر دی جاتی تھی۔ اس جلدی شادی کے جتنے فائدے ہیں، اس سے بڑھ کر کئی زیادہ نقصان بھی تو ہیں۔ وہ مجھے لگتا ہے کہ ایک لڑکا جب تک ٹھیک سے اپنے گھر کا بوجھ نہ اٹھا سکے، اس کی شادی نہیں کرنی چاہیے۔ پھر دادی کہتی کہ میری بات کی تو کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے جب بوڑھا ہو جائے تب شادی کر دینا، اور ہم سب دادی کی یہ بات سن کر ہنس پڑتے تھے۔ دن مہینوں میں اور مہینے سالوں میں بدلتے گئے۔ بھیا کی عمر 30 سال ہونے والی تھی، اور دوسری طرف وہ لڑکی جس کا نام ارم تھا، میرا بھائی اور وہ ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے، پر ہمارے گھر کا ماحول ایسا تھا کہ ابا کبھی بھی پسند کی شادی پر راضی نہ ہوتے، اور اگر ہو بھی جاتے تو کبھی برادری سے باہر شادی نہ کرنے دیتے۔ ابا کہتے کہ ہمارے خاندان میں آج تک کبھی کسی نے خاندان سے باہر شادی نہیں کی۔ ابا نے بھائی سے کہا کہ وہ میری اور بھائی کی شادی ایک ساتھ کریں گے، اور وہ بھی ایک ہی گھر میں، یعنی ابا اپنے خاندان میں ہمارے وٹے سٹے کی شادی کرنا چاہتے تھے۔ ابا نے میرے لیے لڑکا بھی پسند کر لیا تھا۔ بھائی نے کہا کہ ابا میں وٹے سٹے کی شادی پر یقین نہیں رکھتا، اور یہ ضروری تو نہیں کہ وٹے سٹے کی ہر شادی کامیاب رہے۔ تب ابا نے کہا کہ سیدھی طرح کیوں نہیں کہتے کہ تم یہ شادی نہیں کرنا چاہتے، بلکہ اس لڑکی ارم کو پسند کرتے ہو جو ہمارے خاندان کی نہیں ہے۔ ابا نے بھائی کی ایک بھی نہ سنی، اور بھائی غصے میں گھر چھوڑ کر چلا گیا۔ گھر میں ایک الگ ٹینشن بن چکی تھی۔ اماں نے بہت کہا ابا سے کہ جوان بیٹا ہے، اگر اس نے کوئی غلط قدم اٹھا لیا تو کیا کریں گے، اور اب وقت بدل چکا ہے، لوگ ذات پات کو نہیں دیکھتے۔ تب ابا نے کہا کہ میری سوچ آج بھی وہی ہے، اور مجھے اپنی اولاد کے لیے کیا بہتر لگتا ہے اور کیا نہیں، یہ میں اچھے سے جانتا ہوں۔ بھائی تو اس رشتے کے لیے نہ مانا، مگر ابا نے میرا رشتہ وہاں پکا کرنے کے لیے تیاریاں شروع کر دی۔ پر منگنی سے 2 دن پہلے جہاں میرا رشتہ ہوا تھا، ان لوگوں نے بھی کہہ دیا کہ جب ہماری بیٹی کا رشتہ آپ نے نہیں لیا تو ہم کیوں آپ کی بیٹی کا رشتہ قبول کریں، اور ابا افسردہ گھر لوٹ آئے تھے۔ میری اماں نے کہا کہ دیکھ لیا اپنوں کا رویہ، آپ کے بیٹے نے اس رشتے سے انکار نہیں کیا تھا، بس وہ وٹے سٹے کی شادی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ آپ نے کبھی اپنے بیٹے کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی، ایک بار بھی اس سے نہیں پوچھا کہ وہ کیا چاہتا ہے۔ آپ نے اس کی شادی اس کی پسند سے نہیں کرنی، مت کریں، پر ایک بار ایک باپ ہونے کی حیثیت سے اسے بات تو کریں، اور اسے گھر آنے کا کہیں، ایک ماں ہونے والا ہے، اسے گھر سے چھوڑے ہوئے۔ تب ابا نے کہا کہ ٹھیک ہے میں بات کروں گا، پر ابا کی بات کرنے سے پہلے بھائی نے اپنی پسند کی لڑکی سے نکاح کر لیا اور اسے لے کر گھر آ گئے۔ ابا نے بھائی کو دھکے دے کر گھر سے نکال دیا۔ دادی نے آگے بڑھ کر ابا کو روکا کہ بہو کو گھر سے مت نکالو۔ ابا نے کہا کہ اس اولاد کے لیے میں نے ساری عمر لگا دی، ان کو پڑھایا لکھایا، ان کی اچھی پرورش کی، اور آج دیکھو ایک غیر خاندان کی لڑکی سے نکاح کر کے میرے سامنے کھڑا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میں مجبور ہوں۔ بھائی کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ بھائی نے کہا کہ ابا ایک بار بات تو سن لیں، ارم کی ماں کی اچانک موت ہو گئی تھی، اور وہ مرنے سے پہلے اس کی ماں نے ہمارا نکاح کروا دیا تھا، کیونکہ ان کے بعد ارم کا کوئی نہیں تھا۔ ابا پھر سے بھائی کو دھکے دینے لگے، کہنے لگے کہ عزت تو چھوڑی نہیں تم نے،
اب शक्ल भी मत दिखाना। अब्बा भाई को धक्के देने लगे तो एकदम दादी बीच में आ गईं और धक्का लगने से वो नीचे गिर गईं, जिससे दादी के सर पर चोट लगी थी। हम सब बुखलाहट का शिकार हो गए थे। भाई ने जल्दी से दादी को गाड़ी में डाला और अस्पताल पहुंचाया, पर दादी कुछ घंटे जिंदा रही और दादी ने जो आखिरी अल्फाज अब्बा से कहे थे वो यही थे कि मेरे पोते को माफ़ कर देना। अब्बा इस दिन बच्चों की तरह रोए थे। जो हुआ था इसमें किसी का कसूर नहीं था, पर अब्बा खुद को कसूरवार समझ रहे थे। हम सब ने बहुत समझाया, पर अब्बा कहते कि सब मेरी वजह से हुआ है। काश मैं अपने गुस्से पर काबू रख लेता, काश मैं अपने बेटे को माफ़ कर देता। ये खानदान, ये जात पात कुछ नहीं होती। अब्बा दादी की वफात के बाद बहुत बदल चुके हैं। इरफान से बात करते हुए जैसे ही मैंने पीछे मुड़कर देखा तो अम्मा खड़ी थी और अम्मा ने मोबाइल मेरे हाथ से छीन कर तोड़ दिया और मेरे मुंह पर जोरदार थप्पड़ मार दिया। अम्मा ने कहा कि तुम्हारे भाई ने जो किया इसे तुम्हारा बाप माफ कर चुका है, पर अगर तुमने अब कुछ गलत किया तो याद रखना तुम्हारा बाप तुम्हें जिंदा दफना देगा। क्या तुम अब किसी का सर लेना चाहती हो? मैंने अम्मा के पैर पकड़ लिए। अम्मा से कहा कि मैं बहुत मोहब्बत करती हूँ इरफान से, अगर वो मुझे ना मिला तो मैं मर जाऊंगी। और अम्मा ने कहा कि तुम कितना जानती हो इस शख्स को जो अपने माँ बाप की 22 साल की मोहब्बत को ठुकरा कर तुम इस शख्स का नाम ले रही हो कि इसके बगैर तुम जिंदा नहीं रह सकती। अगर तुम अपने माँ बाप की और हमारी वफादार नहीं हो सकती, हमारी मोहब्बत को नहीं समझ सकती, तो कभी इस शख्स के साथ भी वफा नहीं कर सकती, बल्कि वो लड़का भी तुम्हारे साथ वफा नहीं करेगा। ये बात याद रखना। और अम्मा कमरे से चली गई। मुझे इरफान के बगैर जीना बहुत मुश्किल लग रहा था। मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो मुझे ना मिला तो मैं मर जाऊंगी। और अम्मा ने अब्बा से कहकर अपने भाई के बेटे से मेरा रिश्ता तय कर दिया और मंगनी के बजाय निकाह रख दिया गया था। मैं अम्मा की मिन्नतें करती, इनसे कहती कि ऐसा मत करें, और अम्मा कहती कि मैं तुम्हारी माँ हूँ, मुझे पता है कि तुम्हारे लिए क्या सही है और क्या गलत है, पर अगर तुमने कुछ गलत करने की कोशिश की तो याद रखना कि मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। पर इस वक्त मुझे सिर्फ अपनी मोहब्बत नजर आ रही थी। मैंने किसी भी तरह इरफान से राब्ता किया और अपने घर वालों की परवाह किए बगैर मैंने इरफान से भागकर शादी कर ली। वो मुझे अपने साथ लाहौर ले आया और मैंने इसे कहा कि तुम तो कहते थे कि तुम्हारा अपना घर और कारोबार है। तो इरफान ने कहा कि जिस तरह हमने अचानक भाग के शादी की है, तुम्हें क्या लगता है कि मेरे घर वाले हमें कबूल कर लेंगे? हमें कुछ दिन ऐसे ही धक्के खाने होंगे। इरफान और मैं वहाँ एक किराए के घर में रहने लगे जो इसके दोस्त का था। लेकिन रात जब भी हम सोने लगते तो कुछ देर बाद मुझे अपने कमरे में से 3 से 4 लड़कियों के रोने की आवाज़ें आने लगती और वो रोते हुए मेरे शौहर से माफ़ी मांग रही होती। मैं इनकी आवाज़ से उठकर बैठ जाती। जब लाइट ऑन करती तो कमरे में कोई ना होता और मेरा शौहर सो रहा होता। मैं ऐसे अपना वहम समझ लेती, मगर अब रोज़ ही ऐसा होने लगा था। एक रात मुझे लगा कि शायद हमारे साथ वाला कमरा जिसको ताला लगा हुआ है और मालिक मकान ने कहा है कि इसमें इसका ज़रूरी सामान पड़ा हुआ है, ये आवाज़ें वहीं से आती हैं। मैं आधी रात को अपने बिस्तर से निकल कर इस कमरे की तरफ चल पड़ी, मगर ये देखकर हैरान रह गई कि ताला खुला हुआ था और अंदर इरफान इन लड़कियों को मार रहा था और एक लड़की से कह रहा था कि तुमने भागने की हिम्मत भी कैसे की। और जब मुझे देखा तो इरफान का रंग उड़ गया। कहने लगा कि तुम यहाँ क्या लेने आई हो, जाओ यहाँ से। मैंने कहा कि ये लड़कियाँ कौन हैं? तब इरफान ने मुझे बाजू से पकड़कर वापस ले आया और जब मैं बेड से चादर हटा कर देखी तो वहाँ तकिए रखकर चादर दी हुई थी, यानी वो मुझे धोखा दे रहा था। और अब मेरा शौहर कुर्सी पर बैठा मुझे घूर रहा था। मैंने कहा कि ये सब क्या है और वो लड़कियाँ कौन थीं? मुझे अपनी बात का जवाब चाहिए। इरफान ने कहा कि क्या करोगी जानकर? मैंने कहा कि मुझे सच सच बताओ, तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? तब इरफान ने कहा कि अगर मैंने सच्चाई बता दी तो मुझे हमेशा के लिए छोड़कर चली जाओगी। वो माँ से कहता कि मैंने तुमसे इसलिए शादी नहीं की थी कि तुम अपने पहले शौहर की औलाद को भी अपने साथ ले आओ, मैं तुम्हारा खर्च उठाऊंगा या इनका। तब अम्मा ने कहा कि तुम्हें मुझसे शादी की जल्दी थी, मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि अगर मुझसे शादी करनी है तो मेरे बच्चों को भी तुम्हें अपने बच्चे समझने होंगे, तब तो तुम्हें कोई एतराज़ नहीं था। फिर अब मेरे मासूम बच्चों के पीछे क्यों पड़े हो? तब मेरा सुतेला बाप कहता कि जितना जल्दी हो सकता है इन दोनों को अपनी माँ के घर भेज दो, वरना तुम भी इस घर से चली जाना। और फिर एक दिन अम्मा ने तंग आकर हमें नानी के घर भेज दिया। अम्मा ने हमें भी अपने पास नहीं रखा और
2 टके के शख्स की खातिर घर से निकाल दिया। मेरी बहन ने मुझसे कहा कि इरफान तुम फिक्र मत करो, इस माशरे में जहाँ बुरे लोग हैं वहाँ अच्छे भी लोग मौजूद हैं। जिस माँ ने हमें दूसरे शोहर की खातिर छोड़ दिया, इस माँ से हमारा कोई ताल्लुक नहीं था और इसके बाद हमने अपनी माँ से मिलना भी छोड़ दिया। मेरी बहन काम ढूंढने लगी, पर इतनी आसानी से ऐसे कैसे काम मिल सकता था, और नानी भी बीमार हो चुकी थी। डॉक्टर ने इनके इलाज के लिए भी पैसे मांगे थे। पता नहीं क्यों लोग बिना पैसों के किसी गरीब की मदद क्यों नहीं करते। नानी का इलाज न होने की वजह से इनकी मौत हो गई और मैं और मेरी बहन अकेले रह गए थे। मैं रोज देखता था कि मोहल्ले के कुछ आवारा लड़के मेरी बहन पर जुमले कसते, जिस पर मुझे बहुत गुस्सा आता। मेरी बहन कहती कि इरफान तुम अभी छोटे हो और ऐसे लोगों के मुंह नहीं लगा करते, इनको तुम भौंकने दो। और एक रोज मेरा सुतेला बाप मिठाई की टोकरियां लेकर घर आ गया और मेरी बहन से कहने लगा कि तुम मेरी बेटी हो, जो कुछ पहले हो चुका है इसके लिए हमें माफ कर दो। मैंने तुम्हारा रिश्ता बहुत अच्छी जगह तय कर दिया है। पर मेरी बहन ने इसको जलील करके घर से निकाल दिया। कुछ दिन बाद अम्मा हमसे मिलने आई और मैं इनसे दूर हो गया तो अम्मा ने आंखों में आंसू लिए मेरी बहन की तरफ देखा और इसे समझाया कि तुम्हारा सुतेला बाप बुरा इंसान नहीं है और इसने तुम्हारे लिए जहाँ रिश्ता ढूंढा है वो आदमी बहुत अच्छा है, तुम्हें हमेशा खुश रखेगा। आप ही ने कहा कि मैं कभी इस बुरे शख्स से शादी नहीं करूंगी जिसकी खुद की बेटियां मेरी उम्र की हैं। तब अम्मा ने कहा कि खुश रहने के लिए उम्र नहीं पैसा देखा जाता है, और मैंने तुम्हारे बाप के साथ इतने साल गुजार दिए लेकिन खुश नहीं रह सकी। हमेशा छोटी से छोटी चीज़ को तरसती रही और अब देखो मैं ऐश करती हूँ। आप ही ने कहा कि अपने दिल पर हाथ रखकर एक बार कह दें कि आप खुश हैं। पता नहीं क्यों अम्मा ने सर झुका लिया और फिर रोने लगी, कहने लगी कि इस रिश्ते के लिए मान जाओ वरना तुम्हारा सुतेला बाप मुझे जान से मार देगा। मैं हर रोज़ इसका जुल्म सहती हूँ। मुझसे गलती हो गई जो मैंने शख्स से शादी कर ली। पर मेरी बहन ने इनकार कर दिया और अम्मा वापस चली गई। एक दिन मैं खुद काम ढूंढने मोहल्ले से बाहर निकला। मुझे खुद अपनी बहन को कमा कर खिलाना था। मैं एक होटल पर काम करने लगा। होटल का मालिक बहुत अच्छा था। मैं बर्तन धोने का काम करता था, लेकिन एक दिन वापस आने पर मेरा एक्सीडेंट हो गया। मैं तब 11 साल का था और डॉक्टर ने मुझे इलाज के लिए बहुत पैसे मांगे थे। मेरी बहन बहुत रो रही थी। अम्मा भी मेरे पास नहीं आई थी और इसलिए मेरी बहन ने मुझे बचाने की खातिर अपनी ज़िंदगी को दाव पर लगा दिया और मेरे सौतेले बाप ने जहाँ रिश्ता तय किया था वहाँ इसी दिन शादी कर ली। मैं बेहोश था। मेरा एक्सीडेंट बहुत बुरा हुआ था। हम दोनों बहन भाई जिंदगी में पहली बार मुस्कुराए थे, पर हमें वो मुस्कुराहट रास नहीं आई थी। मेरी बहन जी भरकर मुझसे बातें कर रही थी, वो रो रही थी और एक चंद घंटों की मुलाकात के बाद वो मुझे हमेशा के लिए छोड़कर चली गई थी और मुझे इस माशरे से, इस इज़्ज़तदार लोगों से नफरत होने लगी थी। फिर मैंने कोठे पर एक औरत के साथ मिलकर इसका काम करने लगा। मैं खूबसूरत लड़कियों को इसके पास लाता और इसका सौदा करता और आज वो लड़कियां तुमने देख ली हैं। ये इसी इज़्ज़तदार माशरे की हैं जिन्होंने मेरी बहन को कबूल नहीं किया था। मैं तुम्हारे साथ भी ऐसा ही करता, पर मैं तुमसे मोहब्बत कर बैठा हूँ। मेरा शोहर सब कुछ बताकर अपने आंसू साफ कर रहा था। मैंने कहा कि जिन लोगों ने तुम्हारी बहन के साथ ये सब किया तुम भी इन जैसे बन गए हो। मैंने कहा कि अगर मुझसे मोहब्बत करते हो तो ये काम छोड़ दो। मेरा शौहर नहीं माना और मुझे बुरा भला कहता हुआ चला गया। मैंने खुद पुलिस को कॉल कर दी। मुझे ऐसे शख्स के साथ नहीं रहना था। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई, बल्कि गुनाह हो चुका था जिसकी सज़ा मुझे मिल रही थी। इरफान के साथ बाकी लोग भी पकड़े जा चुके थे। जो लड़कियां कैद में थीं वो भी बाजियाब हो चुकी थीं। इरफान ने गुस्से में मुझे तलाक दे दी थी। फिर भी कुछ दिन बाद यूं ही भटकती रही और आखिर अपने घर वापस लौट गई। और जब वहां गई तो पता चला कि मेरे बाप की इसी दिन मौत हो गई थी जिस दिन मैं घर छोड़कर आई थी। और मेरा भाई और माँ वो सब बैरून मुल्क शिफ्ट हो चुके थे। आज इतने साल गुजर चुके हैं मगर मैं कभी अपने घर वालों से रब्ता नहीं कर सकी। मैं अपने बाप की कब्र पर रोज़ जाती हूँ, इनसे माफ़ी मांगती हूँ, पर मैं जानती हूँ कि मुझे कभी माफ़ी नहीं मिल सकती। जो लड़की अपने माँ बाप की इज्जत को खाक में मिलाती हैं, इनके नसीब में हमेशा यही कुछ होता है।